become a police. अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं है ना 200 रुपए का टी शर्ट 200 ब्रांडेड बोल के 800 या 1500 में पता नहीं जाकर शराब पी ये तो बहुत तकलीफ होता है become better than what you already were. Thailand is known for its mobility, young people, but हम लोग बहुत busy हैं. Young people should invest. वो बहुत सुंदर कुछ भी नहीं दिख गया. Building business नागर start करने के लिए. We do this. What were the margin for this? Come around building business ना. सो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ये हमारा वेरी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट वीडियो होने वाला है, वो भी एमएस नुनिस कंस्ट्रक्शन के साथ। हमारे साथ है मिस्टर नुनिस साले जो एमएस कंस्ट्रक्शन के मालिक है। तो आज हम सब इनसे कुछ कैजुअल क्वेश्चंस पूछेंगे और देखिए कैसे चलता है ये ब्रॉडकास्ट। तो अभी हम टाइम लेके अपने गेस्ट को अपना खुद को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। Hi everyone, as Vilas said, हम मालिक हैं। हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का मालिक है। हम हिंदी से नहीं बोलेगा क्योंकि हमारा हिंदी बहुत खराब है। लेकिन yeah, it feels nice to be in his podcast. I think this is something which we need to try and we're gonna do something new. So this is just the learning stage of how we will try to maybe in the future create a podcast page. Just to have fun. So if you're watching this, I think please make sure to like and subscribe his channel and just enjoy the vlog, the podcast. हम सब ये जो गेम है ये भी खेलेंगे और सर से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट चैनल होने वाला है। तो अगर आपसे हम सबसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा क्या मिस्टेक कर रहे हैं हमसे। तो कीजिए मिस्टेक मत कमेंट कीजिए। तो हमारा पहला सवाल जो सर से होगा कि जब आप 10 या 15 साल की उम्र में जब बच्चे थे तो आपका सपना क्या था? When I was in class, when I was 10 years old, when I was in हम 10 साल था। 10 जब हम 10 साल के थे, हमारा ड्रीम था सुपरमैन बनने के लिए। लेकिन 20 साल होकर के बाद पता है कि सुपरमैन तो नहीं होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर सब हो गया। So jokes aside, I wanted to become a Superman when I was young. Then in class 10, I wanted to become a police, DGP. Fast forward today, God's plan was different. Now I became a contractor by profession and a social worker by profession. So yeah, it took time. It took me 7 years to be where I am today. So some people may not like me, some people may not know me, but the struggles which I did to be here, it took a lot of sacrifices. So I'm grateful to be here. I'm grateful to God. I'm grateful to all the people who have helped me to be where I am today. अच्छा था। तो ये गेम स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो हम पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ। पॉडकास्ट का मालिक है ये, तो वो स्टार्ट करना पड़ेगा। Yeah. So because why did you start your YouTube channel? Why? When I was young, I used to see lots of people like earning through YouTube. Or when I was young and when I was in class 9, I also wanted to experience how to get money through online, know digital things. So उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो मेरा ये चैनल छोटा सा ही है, पर आगे जाके क्या होगा वो भगवान के ऊपर है। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर आप हमारे बॉस नहीं होंगे तो आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं है ना, तो हम एक कोना में जाकर शराब पी के रास्ता में घुमाएंगे। If I was not where I am today, I think we would have never met. I would not have met all of you. I think I would be somewhere just staying at home doing nothing. So it would have been a very boring life for me. So I think I'm very happy that I took the decision of not sticking myself in government jobs and doing the private works. I think that has landed me to where I am today, and that is why I got the opportunity to be, because a very young, hardworking guy who has helped me a lot. So I'm very grateful that he's a part of my team as well. Truly blessed. Thank you, sir. और मैं ये बता दूं कि मैं भी सर के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। मैं उनका डिजिटल क्रिएटर हूँ और ये मेरा टर्म। So because
आप क्यों बीबीए सब्जेक्ट ले लिया? वही ये सब्जेक्ट देखने से मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सबके सब बिजनेस में ही इंटरफेयर होता है। बिजनेस में ही सब जितने नाना नानी दादा दादी अंकल चाचा सब बिजनेस सब में Oh, so it runs in the blood. No. तो हम भी बिजनेस में जा रहे हैं धीरे हाँ। धीरे क्या होता है। That's good यार, क्योंकि हमारा बाप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा माँ भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, मेरा सिस्टर क्या बोलते हैं इंजीनियर, मेरा बहन भी इंजीनियर है। तो हमारा फैमिली में हम एक बिजनेस करके हाँ हमारा इंडिया अच्छा है। तो हमने इसे सुना था कि आप नुनेस कंस्ट्रक्शन के भी सीईओ है और चेयरमैन ऑफ विजन ट्रिनिटी एंड चेयरपर्सन ऑफ ये तो निशा है, विजन ट्रिनिटी का तो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ विजन ट्रिनिटी कुछ और क्लब के जो आप प्रेसिडेंट हाँ, वो हाँ। एक साथ आप कैसे हैंडल करते हैं? ये तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन it's fun. I mean, you get to come out from your comfort zone and you become better than what you were before. Joining organizations, yes, it's not easy. You spend a lot of money from your own pocket, which you don't get back in return. But the experience which you get from all these organizations, you become better than what you already were. You become smarter, you become more understanding, you become more patient also. And then you get to know a lot of people. And I think the connection is very important at the end of the day. If you want to make it in life, connection is very important. So, joining all these organizations, I did not join by force. The only organization which I joined was the one which I created, that is known as Vision Trinity Club. That is the only one which I created, or else the rest, all of them called me, invited me to be a part of the organization, though I'm young. So it's nice working with people who are older than us. It's nice working with people who are smarter than us, because you get to learn from them and you can work under pressure and you become better than what you already are. Because it's also very good in working under pressure. It's not that thing. अच्छा तो सर जब हम इसी टॉपिक की बात करें तो मैं ये सोच रहा था कि अब जैसे नॉर्थ ईस्ट यंगस्टर के बारे में क्या सोचते हैं? Northeast youngster, see, Northeast is divided into 7 sister tribes, and all the different states have their own advantages and disadvantages. Nagaland is known for its ability, young people, but the thing is that we're very lazy. हम लोग बहुत lazy है. Then for the Northeast people to shine in India, because मोदी जी ने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट डेवलप होने से इंडिया भी डेवलप होगा. तो अभी नॉर्थ ईस्ट डेवलपिंग स्टेट है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में young people should invest in construction, in painting, in singing, in football, everything, because Northeast one of the most talented when it comes to physical activities. So I think Northeast people should unite irrespective of their state, irrespective of their tribe, and work together to promote Northeast and Nagaland, or Northeast and India together. Yeah. So because when did you start learning to ride a bike? वो जब हम क्लास 10 में थे तो लॉकडाउन होने से पहले जो हम सबको छुट्टी मिलता 2 महीने का, तो उसमें हम गांव में पिता मेरे पापा मेरे भैया एक साथ गांव गए। तो मेरे भैया को बाइक चलाने का बहुत शौक है। तो जब हम सब स्टेशन पे उतरे तो मेरा भैया जो वो घर ना जाके डायरेक्ट शोरूम में गए और बाइक खरीद के सीधा घर आ गए। तो नेक्स्ट डे मेरे भैया को बोला कि मुझे भी बाइक सिखा दो, तो भैया ने सीधा मेरे को बाइक चाबी दिया। उसके बाद ब्रेक क्लच और ब्रेक का ब्रेक किधर होता है वो बता दिया, बोला आप जाओ चला के। वो भी मेरे को टाउन में दिया था बाइक चलाने, कोई बात होगा नहीं बिहार में। तो बिहार में बाइक देने के बाद हम आधा घंटा से क्लियर सीखने के लिए सीखने के लिए आधा घंटा। तो उसके पहले आप साइकिल चलाते क्या? साइकिल दोनों हाथ छोड़ इसलिए फर्स्ट सीख लिया। और आप चला लेते हैं। हम भी चलाते हैं। हम क्लास 6 में बाइक चलाते था। वाह, स्कूटी से शुरू किया। उसके बाद बुरा साइकिल बोलते हैं ना, वो बड़ा वाला साइकिल, तो वो चलाते थे हम। हमारा 5-6 साथी था, तो हम लोग BMX गियर साइकिल खरीद लिया।
तो ढूंढते था साइकिल चलाने से चलकर ढूंढते था तो उसके बाद बहुत प्रो हो गया बाइक एक्सीडेंट सिर्फ एक बार एक्सीडेंट हो गया वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो एक्सीडेंट तो ऐसे हो होता वो एक्सीडेंट तो ऐसे हुआ क्योंकि हम बस्ती से आ रहा था गांव से आ रहा था तो उधर उस टाइम में पोल्यूशन बहुत था हाँ। नेशनल हाईवे में तो जहाँ में था कि बारिश शुरू हो गया तो बारिश होने से वो पोल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं दिखा कुछ भी नहीं दिखा तो जहाँ जाने से हमारा फ्रंट टायर हाफ पोल्यूशन में ही बाइक का हाँ बाइक का फ्रंट टायर जो हाफ हाफ गधा में चला हाँ गधा हाफ गधा में चला गधा में मेरा बाइक हाँ चला तो हम जंप किया हाँ, बाइक से तो हमारा भाई हमारा ब्रदर उसको तो सब स्पेशल हो गया लकीली हम तो नी पेन और ये चलाते था तो लगने से कुछ दर्द नहीं हुआ मर्ज को दर्द नहीं होगा। हाँ तो हमारे सर को हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है तो बस इंजॉयमेंट के लिए हाँ ये इंजॉयमेंट के लिए है तो हम भी हिंदी सीख रहा है विकास के साथ तो हमको भी सपोर्ट दे दीजिए कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे मन बोलिए तो आप बोल रहे थे कि जैसे आप नेशनल हाईवे पे एक बाइक चला रहे थे तो नेशनल हाईवे पे बॉर्डर है तो आप ये क्या सोचते हैं इसके बारे में? गवर्नमेंट कुछ करती है कि नहीं? गवर्नमेंट कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा है क्योंकि ये नेशनल हाईवे तो नागालैंड में ये सबसे पुराना नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 99 and it also connects national highway or Asian highway 1 which connects from Thailand Myanmar to Nagaland so yeah national highway it should be in good condition the road should be in good condition because we're in the 21st century so the road condition should not be like that of the 90s so it is my appeal to the state government and any concerned individual to kindly take the necessary actions including the NHIDCL हम प्रोटेस्ट किया था उसके बाद वो भी NHIDCL भी नेशनल हाईवे को थोड़ा सा रिपेयर कर दिया लेकिन ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदी में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं ये NHIDCL का जिम्मेदार है जिम्मेदार है इसलिए वो करना पड़ेगा ना टाइम फ्रेम उसको दे दिया तो उस फर्म को तो बहुत स्लो है उनका काम बहुत स्लो है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है NHIDCL को तो हम बोल रहा है कि kindly repair the road at the earliest because this is the national highway तो सर हम रोड के बारे में बात करें तो आपने नेशनल हाईवे थाईलैंड जो कनेक्ट है उसके बारे में बात की तो मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि 2013 में दीमापुर कोहिमा का जो नेशनल हाईवे है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ I think there's a lot of factors here. There's a lot of factors. Contractor भी काम अच्छा नहीं किया. उसके बाद land compensation बोर्ड है. उसके बाद डिपार्टमेंट भी बिल टाइम में नहीं रिलीज किया. काम सब स्टैंडर्ड होने के लिए सेंट्रल से फंड नहीं मिला. फेज 2 का फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे entitled. So maybe they did not do their works properly. So they did not get the proper funding 2030 तो हम भी बहुत बचे थे हम लास्ट टाइम में था तो हम लोग उधर उधर घूमने हाँ उधर टाइम तो उस टाइम में तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं था ना तो उस टाइम में कैसे था हमें भी नहीं पता है तो होने से बहुत मुश्किल है हमके लिए हाँ सर तो सर आप कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं तो अगर क्या आप फ्यूचर में रोड कंस्ट्रक्शन में जाने वाले नहीं हमको रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है रोड कंस्ट्रक्शन में तो हाँ पैसा मिलता है काम अच्छा से करने से ना देश की सेवा कर रहा है स्टेट का सेवा कर रहा है क्योंकि यू आर बिल्डिंग द रोड फॉर दैट रोड अच्छा होने से डेवलपमेंट आएगा लेकिन हेल्थ सेक्टर बहुत डिस्टर्ब करता है क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन नई रोड खुदाने से वो 10 हो रही
तो हमारा वर्कर भी काम करने से फट भी होता है उसको उन लोगों को। और ये ब्लैक टॉपिंग एस्फॉल्ट ये भी करने से इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन ये गरम एस्फॉल्ट करने से कैंसर फट होते हैं। इसलिए you're working, your employees are getting paid, but at the same time you're risking that of cancer also, and TB. So building houses are much more easier actually, and it's more fun to build houses and interiors like this. Yeah, that's why I think even in the future, हम तो construction ये घर बनाने में stick करें, उधर रहेगा। अगर सर आपको हिंदी बोलना कुछ तकलीफ हो रहा है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। हम भी हिंदी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम भी हिंदी सीखने का मन सीखने का मन है, क्योंकि वंस आउटसाइड नागालैंड जाने से बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमको तकलीफ होता है ये। तो ये भी हमको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मिल रहा है ये भी, क्योंकि हमका हिंदी का भी अच्छा नहीं है, लिखने भी नहीं पता है, पढ़ने भी नहीं पढ़ सकते, समझाता है। मेरे को भी बस हिंदी बोलने आता है, लिखने नहीं आता है। तो उनको भी नहीं पता, तो हमको किससे बताएगा? हमको बस थोड़ा थोड़ा मालूम है। थोड़ा हम तो ये और पता है 3 1 ऐसे 2 ये और बोलते हैं ना, तो ये पता है। हाँ, विकास आपका एम इन लाइफ क्या था? जैसे आप बचपन से ही जब हम क्लास 10 11 तो थे, अब बिजनेसमैन बनना चाहते थे, वैसे भी मैंने तुम भी बिजनेस? वो बिजनेस का बात करें तो जब मैं क्लास 11 में था तब मैं पार्ट टाइम जॉब एक बिजनेस में करता था, तो वहाँ क्लास 11 में क्लास 11 में तो लगभग मैं 2.5 ईयर उनके साथ काम किया। फिर बिजनेस का जो भी होता है कह सकते हैं, उसके बारे में पता चला, तो धीरे धीरे मैंने भी सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग। तो मैंने भी एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था। दूधी ब्रांड? तो बस वो सीखने का एक मात्र था, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना जो बिजनेस था उसको धीरे धीरे ऑफलाइन से स्टार्ट करूँगा। तो अच्छा, क्लोथिंग बिजनेस नागालैंड में स्टार्ट करने के लिए ना, आप नागालैंड से किया था बिजनेस, सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना मुश्किल था, और बिजनेस का मार्जिन रेट अच्छा था या लाइक नॉर्मल था? नॉर्थ ईस्ट का मार्जिन देखने से ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कुछ 100 कपड़े सेल किए थे। तो 100 में जो नॉर्थ ईस्ट का ऑर्डर था वो लगभग बहुत कम था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो नॉर्थ ईस्ट के साइड से उतना ऑर्डर नहीं आता है, वो प्लेन एरिया से ही आता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ से। और वैसे नॉर्थ ईस्ट के साइड तो बहुत ही ज़्यादा वो रिटर्न होता है। क्यों? Why do you think in the northeast area most business they go back, like Mostly what I think is because of the road condition, और यहाँ जो लोकेशन बताता है वो जो डिलीवरी बॉय होता है जो डिलीवरी करने आते हैं उन सबको समझ नहीं आता, तो बहुत अभी वो कैंसिल कर देते हैं, या जो टाइम पे नहीं पहुँचता है तो वो सब कैंसिल कर देते हैं प्रोडक्ट। इसी की वजह से शायद जो वो सब रिटर्न हो जाता है। So what kind of kids clothing brand? What kind of clothing brand did you sell? Like t-shirt? Yeah, t-shirt, Custom t-shirt? yeah, custom t-shirt. कैसे, like with what logo or with? It was two type, जो हम खुद एक डिजाइनर है तो हम खुद सारे प्रोडक्ट डिजाइन कराएगा, उसके बाद टी-शर्ट प्रिंट करेगा। एक था जो आप सबको कौन सा डिजाइन पसंद है वो आप हम सबको इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए और वो हम सब कस्टमाइज करके आपको डिलीवर करते हैं। अच्छा, तो आप ये सब नागालैंड से कर रहे हैं ना, लेकिन उधर तो आउटसाइड नागालैंड में आ रहा है, तो आपका मटेरियल सप्लाई कहाँ से ले रहा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से रिसोर्सेज लेकर नागालैंड में नहीं, वो एक्चुअली हम सब ऑनलाइन डील करते हुए लाइक ये ड्रॉप शिपिंग का ये मिक्स अप होता है। जैसे कि मैं उसको डिजाइन भेजा, उसको जो मुझे जैसा कपड़ा चाहिए, कितना क्वालिटी का चाहिए, 100% कॉटन का चाहिए, तो वो मैं उन सबको डिटेल दूंगा। उसके बाद वो डिज़ाइन सब बनाएंगे और कहाँ भेजना है वो भी मैं उनको भेज दूंगा, और कौन सा डिलीवरी क्या बोलते हैं एक्सप्रेस चूज करना है वो भी मैं उनको बता दूंगा। उसके बाद वो
डिलीवर कर देते। तो से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि हम भी बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है ना, तो आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू आल्सो। ये मार्जिन रेट कितना है से फॉर एग्जांपल पर टी शर्ट में, क्योंकि आप उधर से ले रहा है तमिलनाडु से ना, तो यू आर लाइक द वन हु इज द मिडलमैन, योर गाइड इज आस्किंग यू। और यहाँ पे मिडल मैन का कोई काम नहीं हो, ये डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी होता है। अच्छा, तो यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग था वो। मैन्युफैक्चर और डिजाइनर जो हमें कंपनी ओनर डायरेक्ट डील होता है, तो इसमें कोई मिडल मैन का काम नहीं होता। तो यहाँ जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हम सब के ऊपर डिपेंड करता है, हम सब कितना सेव कर रहे हैं। इसलिए पर टी शर्ट में कितना था? वो तो वो भाई एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो भाई तो एग्जाम्पल मत दे, मार्जिन कितना था? वो मार्जिन देखने से होता नहीं है, वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सेल कर रहे हैं। अगर आप अभी भी उसका ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे होने से ऐसे जा रहे हैं, तो कितना था? एक टी शर्ट में कितना में बेच रहा था? एक टी शर्ट लगभग 400 से 800 के बीच क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और टी शर्ट के साइज के ऊपर। सो एक टी शर्ट में कितना मार्जिन था? During those days, since you have stopped, na? So during those days, what were the margin per t-shirt if it's for 20 to 30% के बीच करना, 20%? पूरा एक्सपेंसेस सब हटा के 20 to 30%। So I think that's a good margin. That's not too much also, because some people they take like 50-60% margin, na? मैंने काफी लोगों से बात की है अबाउट दिस, तो उन्होंने बोला कि जब एक टी शर्ट बनाने में लगभग 200 रुपये खर्च होते हैं। 200 रुपये का टी शर्ट वो सब ब्रांडेड बोल के 800 या 1500 में बेचते हैं। हाँ। लगभग 4 गुना मार्जिन वो सब देते हैं प्रोडक्ट्स। ये ओरिजिनल ब्रांड के लिए। ओके, अच्छा अच्छा, that's something new, that's something new। हम भी हमारा क्लोथिंग बिजनेस था ना, तो ये विजन क्रिएटिविटी हम तो टी शर्ट नहीं किया, लेकिन कैप और हुडी, तो हुडी में तो मार्जिन है, क्योंकि नागालैंड में स्पेशली कोहिमा तो ठंड है, इधर में वेदर तो मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंड है ना, इसलिए बंदा को हुडी हाँ, तो ये taking that as an advantage, हम क्लोथिंग बिजनेस शुरू कर लिया। हमारा सप्लायर राजस्थान में था, so they send us the material and we choose. So with a minimum order of 1,000 rupees. So per hoodie, we take the good quality, it comes around 600 rupees, including printing, the material, everything, GST, but excluding the transportation. So transportation मिलने राजस्थान से लेकर आने से by road सब मिलाकर 700. तो हम लोग उधर से 1,000 से बेचते थे, और होलसेल देने से हम 900 लेते थे, और वो दुकानदार 100 लेते थे, प्रॉफिट मार्जिन 100, तो वो भी बहुत अच्छा चलता था। So that was in the year 2017-18. So we sold around I think 8,000 rupees. तो उसमें तो मार्जिन बहुत मिला था, लेकिन during that time हम भी हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस इनिशियल स्टेज में था, इसलिए 2 साल करने से फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए क्लोथिंग ब्रांड बंद किए। तो अगर आप ये फ्यूचर में सोच रहे हैं कि जो आपका क्लोथिंग ब्रांड है वो काफी अच्छा स्टेबल हो गया था, हाँ। तो फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि उसको स्टार्ट करने हाँ, I always have plans for that. Sometimes it even comes in my dream, because during those days, Vision Trinity, it was everywhere. Everybody was wearing it. Even now, once in a blue moon, you see someone wearing a hoodie, and it feels good because the material is really good. So now I can't say that I'm successful, but I established a little thing for myself. So now with the knowledge I have, I really want to open the clothing brand, because now I know what to do, what not to do. So if we do it properly now, the profit margin will be good, the promotion will be good, the sales will be good, and the market value of the hoodie will also be good, because I want to make it like a brand. Because even during those days, it was a brand itself. Everybody knows it, it's a brand, so I want to make it into a brand. But then situation is such that now we're not getting the time. Because when I started the clothing brand, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम में तो बहुत तकलीफ था, क्योंकि कनेक्शन नहीं है,
outside Nagaland, kasi connection nila would be we're scared if we get scammed. Scam me, hold up. Scam me, हो गया. हाँ, 50,000 का scam भी हो गया. तो थोड़ा सा hindrance था. लेकिन आप जैसे नहीं है. तो अब वो 15,000 स्कैम कैसे वो 50,000 स्कैम तो हमारा गलती था आई थिंक. हमारा गलती था आई थिंक नहीं, मेरा गलती था क्योंकि मेरा होमवर्क अच्छा से नहीं किया. ऑनलाइन से OLX में गया, बहुत सेलर टाइप किया, उसका नाम पॉपअप मैं डिस्प्ले केम अप. सो हाँ, उसको कांटेक्ट कर रहा था. वो बोला था कि हमने हमारा ब्रांड लीडर ऐसे. So without cross-checking everything, without even checking his location on maybe on Google or YouTube, उसका previous clients का review नहीं था. तो excitement से बचा था. उस टाइम तो हम भी थोड़ा सा immature था. तो excitement से हम भी excitement से हर order place कर लिया. मुझको नहीं पता था कि first 50% देना पड़ेगा, उसके बाद डिलीवर होने से 50% देता था. उस टाइम में तो नहीं पता था ये, तो 100% दे दिया. तो ये बोल रहे कि हमारा सामान लेकर नहीं आया, फोन स्विच ऑफ कर दिया. हम FIR किया जाकर पुलिस स्टेशन में. लेकिन पुलिस स्टेशन भी हमको गाली की हमको गाली दे दिया क्योंकि नागा मानो बहुत स्कैम हो रहा है, क्योंकि अब लोग बहुत इग्नोरेंट है ना. ये सब होमवर्क अच्छे से करने चाहिए. राजस्थान में तो, दिल्ली में तो ऐसे स्कैम लोकेट करना बहुत मुश्किल है. तो वो तो 50,000 was a very big thing for me. लेकिन वो एक्सपीरियंस मिलने से आज हम बहुत केयरफुल हो. I always do my homework 2-3 times before I तो talk. जब आप ये मिस्टेक हुआ था, हाँ. तो आपके जो टीम मेंबर्स थे उनका तीन मेंबर्स नहीं था. आप अकेले हाँ, अकेले बिजनेस कर रहा था. तो ऐसे स्कैम होने से बहुत टेंशन था. क्योंकि 50,000 was a huge amount. तो losing 50,000 was very scary for me. I thought it was the end of the world. I wanted to cry. Could not sleep at night. I tried to sleep, but then I wake up 2-3 times, even at night. We did not have proper sleep. I was so scared to tell my parents. So I think a good 2-3 weeks I got into depression. Really got into depression because I was scared to tell my parents, and then I felt that these scammers may do something else in the future. So that has taught me to be very patient, to be very understanding when it comes to business. So when it comes to business, I'm very careful, and I always ask my client, or I always ask the one who I'm going to buy from. I always ask properly, what is your race? What are the things? What were the previous things which you have done? Can you show me? Can I come to your place and check the company? Can I come to your industry? इसलिए अभी भी can you also know, if there is something I want to try, I want to go and see the thing personally. Even if it's Delhi or anywhere, I want to go personally. Google Maps से उसका review देख लेगा, go to the location, see the work. Only then we can finalize the thing. I do that now. So now scam नहीं हो रहा है. तो सर, जैसे कि आप बोले कि आप लगभग 2017 या 2018 में आप ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो उस समय आप टोटली ऑफलाइन डील करते थे या ऑनलाइन भी चला? ऑफलाइन था. ऑनलाइन ट्राई किया, लेकिन हम तो लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक है चलाते हैं तब. नो वेबसाइट. नो वेबसाइट भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं अभी भी. उस सेक्टर पे तो हम बुद्धू है. तो फ्यूचर में प्लान या वेबसाइट ऑनलाइन बिजनेस? हाँ, that I want to try. Not saying, I don't know if it's going to be successful, but we're young, so while we're young, we want to try and create a personal website for this Vision Trinity thing, so that we can get the caps, the hoodies, so that people can see about us, what we do, the different activities which we can do. So it's interesting. I'm getting to know about all these web pages from you and also. So definitely in the future I want to try it. I think it will be more
self-sustaining, and it will be easier because we're in a generation where it's about work smart, not work hard, not up to work less, but doing everything digitally because we're in a digital era. So आज के लिए बस हमारा एक अंतिम सवाल होगा। तो अब क्या लास्ट क्वेश्चन, तो क्या एडवाइस करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को और नॉर्थ ईस्ट के यंगस्टर को? I think the only advice I can give all of you is that let's work hard, let's work together. When somebody is doing well in life, often people criticize them. The ones who are not doing anything are the ones who are criticizing the ones who are actually doing something, if that makes sense. So I just want to tell all the viewers that if your friends are doing well or if you are doing well, let go of the haters, let go of the naysayers, because people who cannot do are the ones who are talking about you. When you are the one who is taking the first step, you are actually doing something, you are actually going ahead of them. So don't listen to other people. They may say this and that, but their opinion doesn't matter. People who care for you, people who have helped you, those opinions matter to you, not the opinions of people who just talk ill about you. So to all the listeners who are here today, I just want to encourage all of you to work together, to help each other, to encourage each other, and Northeast will grow. I think 4 to 5 years from now, Northeast is going to be one of the most happening places in India, because it is happening place, because it is very different from mainland India. People, tourists, yes, they come to India a lot, but most of them, they want to come to Northeast India because the tribal system is very different, the landscape is different, the way of living is different. So I think Northeast plays a very important part in India as well. So, and we as Northeast people, we should consider that and take that as an advantage and create a change which will impact the whole of India as well. Yeah. सर थैंक यू सो मच आपका एडवाइस हमारे यंगस्टर के लिए। अगर आप सबको कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और आप सब ये जो पॉडकास्ट है वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक आप सब बने रहे इसके लिए आप धन्यवाद, और जो ये पॉडकास्ट है हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। बाय।